how the storage is done, what all things to check, and ये आपके रिटर्न्स में भी कॉमन क्वेश्चन है, what all factors to be taken into account while making a container storage plan. So I think that we have gone through all these 14-15 points, and now comes to the storage. Container deck storage, container decks, hatch covers. If you see, they take the deck load capacity and they are nowadays strengthened enough to take all this load. These container ship hatch covers, which are lift on lift off type, I think about 30-35 ton each ways. So they are constructed in such a way that they can take this extra load of the containers. But same time, when we are loading, we have to see the stack weight, that it does not exceed. आपके load indicators में, the moment you put the plan, so it starts showing you how much weight there. Example, 100 ton is the stack weight, so it should not go up. Pontoons hatch covers equipped with container feet to permit the boxes to be locked in position. So storage के लिए, if you see the first tier, these are your hatch covers. So these are your ISO sockets. So basically where we put this base lock and then load container on top, it gets locked up. So this is welded on your hatch covers and containers. The first tier, that's most important, that it should be absolutely secure, and you have these lashing eyes for the lashing rods next to it. Now you see the condition is most important. When we come to securing, the condition of these eyes, of course when the ships are new is okay, but as the ships become old, so these eyes should be, of course, at least maintained, sockets should be maintained in good condition. General precautions, deck container should be stored secure, taking into account the following things. Containers are generally stored in fore and aft direction, and they should be stored in such a position not to deny safe access to those. Of course, with cellular ships, that's not the problem. The ship is designed in such a way that we can easily walk on the main deck area, and containers are basically resting on hatch cover and the pedestal. So access to any place on the ship is not issue with these type of ships, and they should be effectively secured in such a manner that the bottom containers will be prevented from sliding. That's with the base lock, which has got two cones. So they secure the container in those ISO sockets, and top containers or the top corners will be restrained to prevent tipping. And containers, if you see, they are stored in a manner it does not extend over the, of course, ships are designed that these containers do not extend outside the ship side. And further containers on second tier and above should be secured with semi-automatic or automatic twist locks. So deck containers, the lashing is, when we come to the securing part, we have to be a little more careful. Under deck, no problem, no lashing, nothing, cell guides are there, but on top we got to be really careful because ships are going to roll pitch heavily. And also the deck load should not overstress the deck area of storage. That's what I told you, we always check the stack weight. The first thing we check on the lash and the storage plan, that know where the stack weights are exceeded, whether under deck or on deck or hatch covers. And again, the lashing system should not cause excessive stress on the container. यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि yes, when we tighten these lashing rods, when we are taking the lashing, how much do you tighten? जिन्होंने container ships किए हैं, so do you have any idea, any parameter that इसको कितना मैंने tight करना है? और the guys who are using those rods, तो lever use करते हैं. Anybody? Guys who are working on container ships, lashing rods को हम कितना tight करना चाहिए हमें? सर कितना टाइट, मतलब जितना मैक्सिमम टाइट कर सकते हैं. वो तो टर्न बकल्स दिए होते हैं सर, उसमें फंसा के फिर ऊपर जो स्पेसेस दी होती है कंटेनर्स में, कॉर्नर्स में, उसमें उसका स्पिंडल डाल के फिर उसको
मतलब इक्विपमेंट्स रहते हैं सर हैंड टाइट करने के लिए और फिर वैसे टाइट कर सकते हैं उसको? Yeah, normally what you have, everyone has got that small piece of steel rod. तो जो सब अपनी पॉकेट में रखते हैं 1-2 फीट लॉन्ग, 1-1.5 फीट लॉन्ग, वो तो लीवर है, उसको यूज़ करेंगे हम। टर्न बकल में आप डालिए, उसको टाइट करते जाइए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सबके माइंड में ये होता है कि यस, कि यार उसको मैक्सिमम टाइट कर दो जितना कर सकते। यार वहाँ पे हम थोड़ा सा, इट इज़ समथिंग स्लाइटली रॉन्ग। अगर हम उसको ओवर टाइट करेंगे तो यू कैन जस्ट फील क्या हो क्या रहा है कि एक तो कंटेनर उसने अपने ऊपर 7-8 स्टैक का लोड लिया हुआ है, विच इज पुटिंग अ लोड ऑन द डेक ऑन द हैच कवर। उसके बाद मैंने ये रॉड लगा दिया और मैं उसको टाइट के ऊपर टाइट करता जा रहा हूँ। एवरीबडी यू सी, नाउ वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा लोड ऑन द हैच कवर्स। तो एक तो स्टेज आएगी कि यस, अगर हम उसको करते जाते हैं ना, वीक पॉइंट विल गिव इन। वीक पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, टर्न बकल भी टेस्टेड है, कंटेनर पोस्ट भी स्ट्रेंथन इनफ है, आई भी हमारी टेस्टेड है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं तो इस फोर्स ने निकलना है। तो यू विल फाइंड स्लोली योर हैच कवर, जो हैच कवर की प्लेटिंग जो है, दैट स्टार्ट्स गेटिंग डिफॉर्म्ड। सो अपने लैशिंग रॉड को इनफ टाइट, जस्ट टाइट इनफ, नॉट एक्स्ट्रा टाइट। सबके माइंड में ये होता है कि हाँ, उसको मैक्सिमम एकदम से टाइट करते जाते जब तक वो थ्रेड उसका, मतलब जितनी उसके पास स्ट्रेंथ है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। द रिस्ट्रेंट सिस्टम जो है उसको हमने एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं देना कंटेनर में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कॉज एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द हैच कवर। ये आपका रीज़न है कि आपकी जो प्लेटिंग है, हैच कवर की प्लेटिंग है, वो आपको डिफॉर्म हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं, इतनी नहीं होगी कि दिखे, बट slowly the water starts going into your hatch covers. So इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि यस, उसमें ठीक है, स्लैक नहीं होना चाहिए, रॉड इज टाइटन इनफ बट नॉट एक्सेसिवली टाइट। एंड अगेन दिस लैशिंग सिस्टम सिक्योरिंग शुड हैव सम मीन्स ऑफ टाइटनिंग। ऑफ कोर्स अगर लूज होती है देन इट इज़ ओके। I know that there are check nuts and all that, nobody has got time to put that, so there is a possibility of these lashings getting a little bit slack, but again हमने उतना ही टाइट करना है जितना, इट इज़ लाइक व्हाट वी कॉल द हैंड टाइट, कि ठीक है, लीवर से आप उसको इंस्टेड ऑफ हैंड टाइट से, लीवर से आप नॉर्मल टाइट कीजिए, नॉट एक्सेसिवली। एंड ऑल दिस सिक्योरिंग इज गिवन इन योर कंटेनर सिक्योरिंग मैनुअल, प्लान इज फुली गिवन देयर, सो उसी को हम फॉलो करते हैं। हैविंग एन अप्रूव्ड कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल इज अगेन अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया, उसके अंदर क्या क्या दिया है, सारी कैलकुलेशंस and all these things are given there in the CSM, and वही प्लान हमें फॉलो करना है सिक्योरिंग का भी। and even it is given for different values of your GM. It is imperative to the safety of ship and protection of cargo personnel. Securing of cargo is carried out properly, and only appropriate securing points for fitting should be used. Now these new ships or cellular ships, of course this is not a problem because everything is well arranged, organized, so we don't face these problems. Normally you see this. Now this is a big job कि lashings, तो lashing gang उसको unlash करेगी, they will throw this material, we have to keep squaring up. So when we come to the loading, जब हमने lashing करानी है, those guys need the lashing material at the respective base, and today we don't have enough manpower. So bigger ships, you can well imagine कि lashing gear को handle करना itself is a very big task. एक तो इसकी inventory, then keeping them enough ताकि वो कम ना पड़े, and then third thing is to keep your ship absolutely clean shape. So these are the basically your rods which we use for securing. This is the base lock normally which is used on the bottom, that you put it in the ISO socket and container, and these two cones turn and they lock the container with the base lock, I mean with the ISO socket. Now these are the systems which is showing that your lashing system, that we put these rods single cross, double cross, and on the extremities we put these wind lashings on the third tier.
So virtually all container ships are provided with now under deck. The under deck अगर आप देखिए nothing is required. The ships are designed in beautiful way that you have cell guides and the containers are loaded along these cell guides. They are fixed by cell guide itself in the hold at the container vessel, and the greatest stress the containers are exposed to stems from the stack pressure. Nothing is required. Directly load. In between also we don't have to put anything except when we are loading 20 footers into these 40 feet bays. Now these are normally 40 feet bays, so your 40 feet containers straightway slide and they get very well secured by these cell guides. So under deck के लिए not a big issue. Only thing high cubes that they don't extend, उसका हमें थोड़ा ख्याल रखना है. That we do it at the planning stage, that these high cubes जितने भी allowed हैं उतने ही हम लोड करें. Now in cell guides का advantage भी है, since these containers are not connected together vertically, so lateral stress is transmitted by individual container to the cell guide. And when positioned in each cell guide, the individual containers are not usually able to shift. And if the corner post of one of the containers at the bottom of a stack collapse, वैसे तो होता नहीं है, but in case if it happens under excessive pressure, containers stored above it generally suffer only slight damage because there is no place for these containers to move. So even अगर आपका bottom container में some damage और इस corner posts bend होती है, कुछ होती है, nothing will happen. तो ऊपर का container थोड़ा सा tilt हो जाएगा. So this is another beautiful part of these cell guides in the holds. The risk of damage to containers in adjacent stack is kept within tight limits. 20 feet containers, yes, यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी. 20 feet containers generally joined with the other 20 feet box through a stacking points. Now I think we have seen this. Now this is a 40 feet guide, and if you now look at this 20 feet container, ठीक है, इसका forward portion तो उसने cell guide ने पकड़ लिया. Now here on the after portion there is nothing. Now this container, if we have to sail in this condition, ये container की तो tendency है, they can move with, they can shift. अब इनको कैसे रोका जाता है? How can we secure this? How this part is secured? Forward तो ठीक है, cell guide ने पकड़ लिया. और we put another 20 footer behind. उसका भी आफ्टर पार्ट जो है सेल गाइड में आ जाएगा, बट जो पार्ट्स टच कर रहे हैं उनकी सिक्योरिंग कैसे होती है? एनीबॉडी? सर इसमें कौन लगते हैं सर, कौन जो उनके मतलब जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर कास्टिंग पे वो स्टैकिंग कौन लगते हैं सर, वो एक ऊपर मतलब जा रहे हैं, तो वो एक मतलब सेल गाइड का मतलब काम करती है. एग्रीड या एग्रीड. देखो यहाँ पे तो आपने कौन डाल दिए, स्टैकर्स जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे तो हमने डाल दिए. वो तो कंटेनर को नहीं है, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा कंटेनर आता जाएगा. बट इनकी ये जो ट्रांसवर्स ओनली 20 फुटर में लगते हैं ना सर? तो हाँ जी, ओनली 20 फुटर में लगते हैं ना सर? यस यस. 40 फुटर में नहीं, 40 फुटर को तो दोनों एंड देखो ना, 40 फुटर तो यहाँ से पीछे तक आ जाएगा, सेल गाइड तक आ जाएगा वो तो. या वो तो दोनों तरफ उसकी जो है, यहाँ हमने देखा है. ये देखिए यहाँ पे तो देखो, अगर इफ़ यू लुक एट, इफ़ यू कैन सी, एक पोर्शन जो है कंटेनर का यहाँ पे फॉरवर्ड एंड जो है इस सेल गाइड ने पकड़ा. सेल गाइड है दिस द एंगल्स, थिक एंगल प्लेट्स हैं, एंड पीछे वाला पोर्शन यहाँ सेल गाइड के अंदर आ गया. सो बेसिकली इट्स लाइक अ फ्रेम जिसके अंदर ये कंटेनर चल रहा है, ऊपर से नीचे तक स्लाइड कर रहा है. अब यहाँ पे क्या केस हो रहा है, जब हम 40 फीटर सेल गाइड में 20 फीटर को लोड कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर तो आपने कर लिया, हम यहाँ पे स्टैकर्स लगाते जाते हैं, कंटेनर मूव नहीं करेगा. बट बच्चे इसकी जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, इसको कैसे रोकेंगे सर? ये सबसे नीचे में सर एक वो होती है, बेस प्लेट होती है सर, बेस प्लेट, उसमें सर आता है पहले वाला कोन, तो वो उसको स्लाइड करने से ना रोकता है. करेक्ट करेक्ट. सो सम ऑफ द शिप्स ऑफ कोर्स यू सी, इवन जो सेल गाइड पे भी, जहाँ पे कंटेनर जाके बॉटम पे रेस्ट करता है, सेल गाइड के एंड पे बॉटम पे भी छोटा कोन वेल्ड किया होता है. तो वो कोन जो है इसकी कॉर्नर फिटिंग में जो नीचे है उसमें चला जाएगा. तो यहाँ पे भी या तो कोन वेल्ड होते हैं या फिर यहाँ पे गाइड प्लेट होती है, ऐसा ट्रायंगुलर टाइप की छोटी सी प्लेट है. सो दिस इज वेल्डेड हेयर, सो जो इसकी साइड वे मूवमेंट को रोकेगी. तो ये 20 फीटर यहाँ पे रुक जाएगा इसी प्लेट के साथ. आई विल शो यू दिस, आई थिंक आई हैड दैट इमेज.
यस ये वाली प्लेट, दिस इज कॉल्ड दिस बेसिकली अ गाइड प्लेट और मिडवे गाइड। या तो ये वेल्ड होगी या ऐसा छोटा कोन वेल्ड होगा डेक। कोन है तब तो ठीक है कि वो कॉर्नर फिटिंग में चला जाएगा, वो नहीं करेगा। या फिर ये गाइड प्लेट है, यहाँ पे आपका एक 20 फीटर इसको यहाँ पे रुक जाएगा, दूसरा 20 फीटर यहाँ से फॉरवर्ड जा रहा है, ये यहाँ से पीछे जा रहा है, सिमिलर इस तरफ वाले इधर। एंड अगर मैं 40 फीट लोड करता हूँ उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो भी इसके पैरेलल ही चलेगा। सो दिस इज हाउ 20 फीटर जो है। सो दैट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स न्यूअर शिप्स में यू हैव दिस कोन्स फिटेड देयर, सो यू डोंट फाइंड दैट प्रॉब्लम, इट सिट्स देयर, बट लॉट ऑफ टाइम दोज कोन्स कम आउट। तो वहाँ से वो बाई चांस कंटेनर जब उसने रखा है या उठाया है तो दे कम आउट एंड देन वी फेस अ प्रॉब्लम। सो ये चीज़ का थोड़ा सा एज अ चीफ ऑफिसर व्हेन यू हैव इंस्पेक्शन इन योर होल्ड्स, बाई चांस अगर आप जाते हो so then you see that what system is provided here. If it is intact, very good. यहाँ पे भी cell guides में भी हो sometimes they put up small cones. Under deck, that's all. That's the only securing part. Rest the cell guides take place. This is how you can show 20 footers secured in the 40 feet cell guides. अब आ गया आपका deck पे. When we have to secure these containers on deck, the mic on it. Can you mute your mics? Now we have seen these containers carried on deck may be secured by twist locks alone, provided the stack is not more than 2 container size. So ये तो हम उस पे नहीं जाएंगे. We will go as per the CSM, whatever CSM says कि भाई उस पे कोन ही लगाने हैं या twist locks ही हैं या rods लगानी है. And in my opinion, always better कि चाहे वो 2 हाई हैं 3 हाई हैं, मे बी everyone will say no need, you never know the weather. So इसके लिए we will not deviate from the securing plans. So bottom corners of each base container locked onto the deck, hatch cover or pedestal with a twist lock that we have seen, that base lock जिसे हम कहते हैं. Twist locks resist the horizontal movement of a deck stroke or lifting of containers in extreme seas is prevented by pull-out strength of the twist locks. So twist locks जो हैं आपके containers को ना तो slide करने देंगे ना lift होने देंगे. And stores more than 2-3 tier high lashing rods are used in combination with the twist locks. Now अगर आप lashing rods को भी देखेंगे, again to enable fitting of twist locks together with the lashing rods, a twist lock is designed with a vertical and horizontal gap between it and a container corner casting. उसमें थोड़ा सा गैप रहता है, so it is not that so tight fitting, otherwise उसको डाल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते. And lashing rods are always fitted tight and kept tight hand by adjusting the turnbuckle. Excessive आपने देख लिया, excessively नहीं tight करना उसको. And when the force is transmitted to the securing equipment during rolling, it is the lashing rods that bear the force first. So इसके लिए हमने lashing rod tight की है, so आपके twist lock पे जो इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन शिप इज एक्चुअली रोलिंग, फर्स्ट फोर्स जो है उसकी इट इज ट्रांसमिटेड टू द लैशिंग रॉड्स, सो दे टेक केयर एंड लैशिंग रॉड्स आर टेस्टेड टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. It is only after the stack of containers has deflected and the gap at the twist lock taken up that twist lock becomes tight. And twist locks की भी strength उतनी है that they also can withstand the force which is going to act even during worst case rolling and pitching. So इसके लिए important है the lashing rods are in good condition and apply them correctly, because first they are the one which are going to take all the force acting on it. A second pair of lashing may be fitted reaching to the bottom of the third tier of the containers, and normally corner rows जो last वाली हैं, if you look at it like this, यहाँ पे आपने सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस एंड और लास्ट कॉर्नर्स वाले हैं, लास्ट एक्सट्रीम बेस, इट इज कॉल्ड द विंड लैशिंग. सो वी पुट दीस लॉन्ग रॉड्स हियर. अभी ये तो एक जनरेशन का था, न्यू जनरेशन कंटेनर्स इफ यू सी, जैसा हमने देखा है, तो यहाँ पे तो हमने फर्स्ट ईयर को लैशिंग रॉड लगाई एंड सेकेंड ईयर का बॉटम पकड़ा, दैट्स ऑल, 2 tiers. एंड एक्सट्रीम वाले हमने बॉटम ऑफ दिस थर्ड टीयर इज लैश्ड विद द लैशिंग रॉड. उसके ऊपर के टीयर जो हैं वो जस्ट ट्विस्ट लॉक पे ही. एज वी आर इंक्रीजिंग दिस
stacks we are loading 7 high, 8 high, so they also know here it is not so good, ये ट्विस्ट लॉक पे ही सिर्फ कंटेनर्स को लेके जाना. सो दे हैव ट्राइड टू रेज दिस आपकी क्रॉस स्टैक, जिसे हम ब्रिज कहते हैं. अब आपका ये ब्रिज जो है, जो क्रॉस स्टैक है, क्रॉस स्टैक भी है, उसके ऊपर ये फ्रेम स्ट्रक्चर उसने बना दिया लाइक दिस. Now instead of taking lashing only on these two tiers, now we start taking lashing from this bridge, जो कि क्रॉस स्टैक के पैरेलली ऊपर चल रहा है. अब यहाँ से आपने लैशिंग लेनी शुरू की तो नेचुरली 1, 2, 3 एंड अप टू 4 टियर आपने उसको लैश कर लिया. सो दिस इज अगेन द न्यू जनरेशन शिप्स जो हैं. अब तो उन्होंने पहले तो सिंगल ब्रिज आया था, अब उन्होंने ब्रिज को भी इंक्रीज कर दिया. ठीक, नीचे क्रॉस स्टैक, फर्स्ट ब्रिज, सेकंड ब्रिज, थर्ड ब्रिज. दैट्स व्हाई यू आर लोडिंग 8 हाई 9 हाई. क्यों कि जितने ब्रिज ऊपर जाते जाएंगे इनकी उसके साथ साथ वहीं से हो लैशिंग. बट इट्स अ टफ जॉब. लैशिंग गैंग तो करके चली जाएगी एट सी. इमेजिन वी हैव टू गो, क्रू हैव टू गो राइट फ्रॉम, एक एक बे में इतने इतने ब्रिज ऊपर से नीचे आना जाना, इट इज़ रियली टायरिंग. एंड ऑल्सो इसके साथ रीफर्स का भी हो गया. अब आपको एक्सेस मिल गया तो पहले रीफर्स होते थे कि यार ओनली अप टू 2 टीयर्स, बिकॉज अदरवाइज ना हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, अगर वो ख़राब हो गया तो ना हम उसको रिपेयर कर सकते हैं. बट विद दिस ब्रिजेस नाउ, दिस न्यूअर शिप्स विच आर कमिंग विथ मल्टीफोल्ड ब्रिजेस, मल्टी लेयर ब्रिजेस, तो आपके इवन रीफर्स आर गोइंग अप. सो वो भी आप थर्ड टियर, फोर्थ टियर पे वेरी कन्वीनियंटली यू कैन लोड, यू कैन मॉनिटर, एंड इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग यू कैन डेफिनेटली इवन रिपेयर. तो ये तो आपका डेक का लैशिंग सिस्टम. तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि यस, एक तो ट्विस्ट लॉक्स आर ऑल लॉक्ड. इन इंटरमीडिएट ट्विस्ट लॉक्स ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक है, उनको तो लॉक करने की जरूरत नहीं हमें. एंड समटाइम इफ यू सी दीज आर योर 45 फिटर्स, इनका लैशिंग सिस्टम अगेन दे मे एक्सटेंड, बट यू कैन अगेन लैश देम हियर. तो ये आपका ब्रिज की लैशिंग जो है, इट बिकम्स ऑफ कोर्स वेरी वेल स्टडीड, कैलकुलेटेड एंड डन. अब वो कहता है डेक stack of containers only as strong as the weakest component. So premature failure of component. हाँ जी सर, ये भी आपने दिखाया था ना पिक्चर, ये 45 फीट वाला जो ये बाहर निकल रहा है सर, इसके नीचे जो मतलब जो कंटेनर रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ है क्या ट्विस्ट लॉक लगाने के लिए, कि ऐसे रखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, इसका जैसे ये आपको कॉर्नर फिटिंग दिख रही है, इसमें डबल कॉर्नर फिटिंग, यहाँ पे भी कॉर्नर फिटिंग है, यहाँ पे भी कॉर्नर पोस्ट है. तो ये एडिशनल वाली है. ये तो अगर है कि 45 के ऊपर 45 करना है तो 40 फीटर के ऊपर 45 है, तो दूसरी वाली इसकी जो कॉर्नर पोस्ट है वो वाली यूज होगी, वो जाके बैठ जाएगी इसमें. ओके, हैंगिंग नहीं होगा ये, इट वोंट बी हैंगिंग लाइक दैट. ट्विस्ट लॉक हमने देख लिया. दे लिमिट द वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट. डायगोनल क्रॉस लैशिंग रॉड्स कैन विथस्टैंड लार्ज टेंसाइल लोड्स, and container ships with high tier storage are exposed to wind effect and hence require additional strong lashing. So that's why उनको wind lashings बोलते हैं, because the strong wind जो है उनको effect करेंगी तो extra lashings on the extreme one जो है. These rods, long rods what we call, they're very heavy and twist locks always locked bottom वाले, बाकी ऊपर वाले तो of course automatic हैं even when the ship is at anchor except during container loading unloading. So उसको कभी भी unlock नहीं करना because there's such a huge load, you never know कब क्या हो सकता है. So only when the ship is berthed alongside then only we start doing the unlashing. वैसे तो bigger ships of course shore people do it and smaller ships sometimes the crew may have to do it. So इसके लिए please be careful when you are opening or the lashings. So you should know only when she is alongside. All the time there is a commercial pressure, time delay. तो इसके लिए हम पहले से ही कि अच्छा यार लैशिंग हमने खोलनी है या हमने करनी है, पहले से ही करना शुरू कर देते हैं. तो लैशिंग रॉड शुड बी केप्ट taut and where possible even have even tension, and lashing rod should never be loose nor over tightened. So turnbuckle locking nuts of course एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैं भी आपको कहूँगा कि हाँ यहाँ भी हम इसके लॉकिंग नट्स डालेंगे ये, बट प्रैक्टिकली इट्स डिफ़िकल्ट.
कि उसको खोलना डालना, एवरीवन इज रनिंग अराउंड अबाउट द टाइम. बट ये है कि यस, इट्स अ डेली रूटीन. So that when we sail out also, that time also every day, so whatever we have people, 3-4 people we have, so we divide them कि चलो भाई सबका अपना रूटीन है, 2-2 बेज 3-3 बेज एक को दे दी. So that way मॉर्निंग राउंड जो है, so आपकी लैशिंग्स आर चेक्ड एंड प्लीज मेक एन एंट्री एज अ चीफ ऑफिसर. आपकी एंट्री बहुत ज़रूरी है बिकॉज मॉर्निंग इवनिंग यू आर ऑन द वॉच. एंड ये एक जिसे कहते हैं, इट्स लाइक कि काम तो आपने किया, बहुत अच्छा काम किया, बट अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो पीपल जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन कि यार हाउ डू आई नो दैट द लैशिंग्स वर चेक्ड. सो ऑफ कोर्स आई डोंट नो, स्लोली आपकी डिजिटल लॉग बुक आ जाएगी जो सेम डे में भी ट्रांसमिटेड टू द ऑफिस. बट एनीवे आपने ये हैबिट बनानी है कि यस मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप लॉग बुक लिखते हो, सो यू डू द जॉब, लैशिंग्स टेंडेड टू, लैशिंग्स टाइटन एंड इन गुड कंडीशन, all found in good condition. वैसे तो मैसेज में भी जाता है आज, कैप्टन साहब हैज टू सेंड अ मैसेज दैट लैशिंग checked and tightened and they are in good condition. So when securing containers or boats, stress is resulting from the ship's movement and wind pressure must be taken into account. ये तो सब हमने देख लिया, सब सिक्योर भी होना चाहिए. अब आपकी प्रिकॉशन चेक्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड लोडिंग. तो पहला तो क्वेश्चन था कि यस व्हाट ऑल प्रिकॉशंस फॉर मेकिंग द स्टोरेज प्लान. Of checks and precaution during discharge and loading. Regularly examine lashing component, looking for any wear and tear, damage, distortion. ये हमारा वॉइस का काम रहता है. Yes, I know we have to do lot of maintenance, other things, but cargo most important. And ऐसा ना हो, of course bigger ships पे when you have this lashing equipment, अगर मेरे पास inventory नहीं है, you just join the ship and you go as per the documents कि हाँ यार enough lashing material is there. Sometime you come full load of containers come, चाहे वो empty हैं fully loaded हैं, and उस वक्त it's a test for the chief officer कि यार lashing material कम हुआ, twist locks, stackers कुछ भी कम हुआ, you cannot do anything. So इसी चीज़ के लिए please make sure that your lashing material is absolutely, or plus there is some spare stock. I don't know, I remember I used to keep some new in the four-pick store छुपा के, जहाँ पे किसी को पता ना लगे, in case any emergency comes या कहीं if you run short, तो आप वहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो. And keep making the stock. थोड़ा बहुत regularly keep on indenting, requisition डालते रहिए. Carefully check twist locks, stevedores, return to the ship as the locks might be of some other ship. ये भी हुआ है. अब 2-3 शिप्स एक साथ लगे हुए हैं, सबके एक ही जैसे ट्विस्ट लॉक्स हैं. सो गियर बॉक्सेस व्हेन वी पुट ऑन द डेक ऑन द जेटिंग, कई बार तो गियर बॉक्स एक्सचेंज हो जाता है, उसके लिए हम अपना स्टेंसिल कर देते हैं नाम. आई थिंक लॉट ऑफ दीज गियर बॉक्सेस जो हैं जिसके अंदर ट्विस्ट लॉक्स वगैरह होते हैं, सो उनके ऊपर इट्स अ गुड हैबिट कि हम अपने शिप का नाम स्टेंसिल कर दें ताकि स्टीविडोर्स को प्रॉब्लम ना हो किसी और शिप का उठा के हमारे शिप पे हमारा कहीं और चला जाए. एंड ऑल्सो समटाइम इट हैज़ हैपन कि आपका गियर बॉक्स शिप है सेल्ड आउट और गियर बॉक्स किधर जेटी पे ही रह गया. अब उसके लिए भी कंपनीज ने अभी नहीं है काफ़ी देर से, सो व्हेन यू सेंड द डिपार्चर प्लान उसके साथ दे वांट टू नो द डिपार्चर रिपोर्ट रादर कि भी गियर बॉक्स की लोकेशन क्या है. सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर चेक राइट फ्रॉम योर क्रू टू ड्यूटी ऑफिसर. लोडिंग ख़त्म हुई, सो यू कैन जस्ट चेक विद द ड्यूटी ऑफिसर बिकॉज साथ साथ ही आप भरते जाते हो कि यार इसका सेल नंबर दे दो ज़रा गियर बॉक्सेस का. तो उससे है कि इट्स अ चेक फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीवन इज़ बिजी. इट्स नॉट दैट यू डोंट नो, फॉर एज अ ड्यूटी ऑफिसर दे आर नॉट केयरफुल. तो इज गॉट 10 थिंग्स रनिंग इन हिज माइंड. कंट्रोल टेस्ट करने हैं, क्रू को उठाना है, इंजन को नोटिस देना है, हैच कवर्स लास्ट मिनट में रख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है. तो इस बार गेम में देयर इज़ अ टेंडेंसी. सो अगर आप यू आर देयर ऑन द वॉकी टॉकी आप पूछोगे तो चलो आइडिया भी आ जाता है, हाँ सर ठीक है अभी उठा रहे हैं रख रहे हैं. तो इट्स अ रिमाइंडर. डिस्करेज स्टीविडोर्स फ्रॉम ट्रीटिंग लैशिंग इक्विपमेंट रफली. ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली पोर्ट्स लाइक एंटवर्प एंड ऑल स्काइज आर वेरी राउडी. उनके जो लैशिंग पीपल हैं वो भी वैसे ही हैं, लैशिंग रॉड उठाएंगे ऊपर से नीचे, ट्विस्ट लॉक को नीचे फेंकेंगे.
यस, पहले तो हम उनसे ऑफ कोर्स, दिस इज ड्यूरिंग योर ओपनिंग मीटिंग, जब आप स्टीविडोर से जो उनका इंचार्ज उससे बात करते हैं उसी को कि प्लीज़ इंस्ट्रक्ट योर बॉयज नॉट टू थ्रो दिस ट्विस्ट लॉक। साथ साथ ड्यूटी ऑफिसर भी है कि यस, हमने तो ऑफ कोर्स वी आर देयर फॉर 12 आवर्स 18 आवर्स, सो वी कांट अफोर्ड टू फाइट ऑल्सो विद एनीबडी। प्यार मोहब्बत से ही काम कराना, रेगुलरली आना भी है, बट एट द सेम टाइम यस, नहीं अगर मानते तो फिर लेटर फिर हम भी लिख सकते हैं कि भी एक तो आप ट्विस्ट लॉक को डैमेज कर रहे हो, इट्स अ कॉस्टली थिंग। सो आइडिया इज टू हैव अ स्मूथ ऑपरेशन, examine D-rings, iPads located on the hatch cover, deck pedestal for damage and repair if found any, and even उनकी of course older ships, new ships में तो लगता नहीं आपको कि iPad जो है ख़राब होंगे, बट older ships में कई बार मेंटेनेंस का चांस भी नहीं मिलता, because all the time the ships have containers on hatch cover, हैच कवर खाली नहीं मिलेंगे तो हैच कवर्स की भी हालत ख़राब हो जाती है, तो iPads तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए चलो हैच कवर्स की मेंटेनेंस तो नहीं हुई, बट एटलीस्ट आई रिंग जहाँ मैंने लैशिंग लेनी है, दे शुड हैव द फुल स्ट्रेंथ। ऑब्जर्व एप्लीकेशन ऑफ लैशिंग्स, एंश्योर दे आर करेक्टली अप्लाइड, लॉक्ड एंड वॉचफुल आई ऑन द कंटेनर लोडिंग, एंश्योर इट इज एज पर द स्टोरेज प्लान। अब ये भी कभी कई बार होता है, यू सी दिस, ये ट्विस्ट लॉक जो है दिस इज प्रॉपरली सिटिंग, लॉट ऑफ टाइम दिस हैपेंस, ट्विस्ट लॉक जो ऊपर का कंटेनर है इसका कोन अंदर जाता ही नहीं है, इट इज जस्ट रेस्टिंग हियर। किया कभी ने किसी ने एक्सपीरियंस ऐसा, एंड वो आपको सिर्फ ब्रिज से ही जाके दिखेगा, बिकॉज दिस कंटेनर्स आर 5, 6, 7 हाई, नीचे से वैसे ही नहीं पता लगता। एंड इमेजिन अगर एक कंटेनर प्रॉपर लॉक नहीं हुआ एंड एक्सट्रीम वे पे आ गया, पूरी वाइज आपका सांस सूखा रहेगा, क्योंकि ना तो इसको लैशिंग रॉड ये लैशिंग ब्रिज से आके दिखता है सर टॉप पे, वो भी रात के टाइम पे टॉर्च मार के। लोडिंग के टाइम में तो डिफिकल्ट है, लोडिंग के टाइम में नीचे से उसको देखना। सो एटलीस्ट एज अ चीफ ऑफिसर प्लीज कीप इट इन माइंड कि ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई हैव फेस्ड। एक बार तो स्टीविडोर को वापस बुलाना पड़ा था कि भाई आ जाओ, क्यों, जब वो ब्रिज पे गए पायलट के साथ, ब्रिज विंग पे गए, कॉर्नर पे जाके दिखा रहे यार तो ट्विस्ट लॉक तो बैठा ही नहीं हुआ, 3 कंटेनर नो, ठीक है आने दो, मैसेज आएंगे जो भी होगा, कुछ भी है देख लेंगे यार, आंसर कर देंगे, पूरी वॉइस तो नहीं सिरदर्दी लेके चलेंगे। तो इसके लिए वो लोडिंग के टाइम ही एक्चुअली चेक करना होता है, वरना फिर बाद में बुला के फिर वो टाइम बर्बाद हो जाता है। एग्जैक्टली, सो हम भी चाहते हैं, वी ऑल्सो डोंट वांट, बट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू नाउ एज अ चीफ ऑफिसर आपने नोटिस किया तो आपको गया रहे यार थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर देखा नहीं है, बट उनके लिए भी इट इज़ डिफिकल्ट। तो नीचे से आप देख रहे हो, नीचे से इवन सेकंड या थर्ड टीयर तक ही दिख सकता है, उससे ऊपर वाले टीयर में पता ही नहीं लगेगा। तो इट इज़, इफ यू आस्क मी, इट्स लाइक अ डिफेक्ट, डिज़ाइन डिफेक्ट, कि आप इसको कर ही नहीं, ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते जब तक हम उसके पैरेलल नहीं जाते। हाँ, लैशिंग ब्रिज है तब ठीक है कि उसके ऊपर जाके हम सबको देखें। तो इसलिए कि इंस्पेक्शन मतलब चाहे वो बोसन लैशिंग देखने जा रहा है या हमारा डेक क्रू कोई भी जा रहा है, ड्यूटी ऑफिसर जा रहा है, आप जा रहे हो, तो आपके मन में ये भी आना चाहिए कि हाँ मैंने चलो लैशिंग भी देखनी है, ट्विस्ट लॉक भी देखने हैं, इनकी पोजीशन भी देखनी है। तो एटलीस्ट 3-4 ब्रेन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। स्टीविडोर्स ऑल्सो, अगर टाइम नहीं होता तो सर आउटबोर्ड के तो देख लेनी चाहिए, 3-3, 4-4 आउटबोर्ड के तो देखने चाहिए, सेंटर का फिर भी चल जाएगा। करेक्ट, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है और ऐसा भी हो सकता है। चलो, इट्स नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्रैक्टिकली यू कैन इमेजिन एवरी टाइम ब्रिज पे जब उसको देखोगे तो साला सांस सूखेगा यार, ये क्या हो गया। तो इसलिए कि ठीक है, हम पहले से प्रिकॉशन लेते हैं, और सबको आइडिया इज ट्रेन योर स्टाफ, ट्रेन योर पीपल, ट्रेन योर टीम कि भैया इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। आई नो समटाइम पीपल डोंट लाइक इट, यार चीफ ऑफिसर बहुत ही बोलता रहता है कोई बात नहीं, बोलने से यू आर नॉट मीनिंग इट, यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, बट एक्चुअली योर एम इज व्हाट, टू गेट द जॉब डन, इजंट इट? दैट्स द एम दैट वी ऑल सेल सेफली, दैट्स ऑल। इसीलिए आप थोड़ा उनके पीछे पड़ोगे कि हाँ यार इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी देख लो, साथ साथ आप भी देख रहे हो।
Now check set C, within 24 hours of departure, examine, check turnbuckles, check all twist locks, subsequently perform lashing check every day, and before onset of bad weather again please go through the lashing with all the crew बोसन कि भैया जरा दोबारा से डबल चेक कर लो. If necessary, apply additional lashings on outboard stacks and stacks with 20 feet containers in 40 feet bay. Lashing equipment not in use correctly stored in lashing bins or racks, and inventory of lashing equipment most important. And कहीं ना कहीं कम होता रहता है, थोड़ा बहुत गुम भी होगा, थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है. तो आज के टाइम में बेस्ट है, डैमेज हो तो थोड़ा सा दिखाने के लिए भी 4 पिक स्टोर या आफ्टर पिक में इकट्ठा करते रहिए. कोई पूछे भी कि हाँ जी ये है डैमेज वाले, इसलिए हमने रिक्वेशन डाली है. ऑफ कोर्स मंथली क्वार्टरली they keep asking you. So this is all the lashing equipment. So I will send you these notes. Please go through this. These are the various equipment. This is ISO socket. These are your eyes, flashing eyes, and these are the various cones, guide plate, and flashing rods of different type. Of course ये तो हम use नहीं करते. Penguin hook किसे कहते हैं? Previously older system था. Nowadays of course these flashing rods are this type वाली rods हैं. उनमें ये चीज़ नहीं यूज़ होती. So you will be able to read when you open into your own computers. So these are your stackers, twist locks, semi-automatic, automatic, and mid locks. Mid locks are like stackers. तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यार these are the things. ऑफ हैंड अगर कोई आपको पूछता है यार what all lashing material is used for securing the containers, so basically base locks, twist locks, lashing rods, turnbuckles, stackers, that's all. So if you go through this, तो आपको एक fair amount of idea लग जाएगा कि यार ये क्या क्या equipment है, and how we use them, that you have seen this. Now you see this the mess here. अब इसमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ खराब दिख रहा है? Anything which you can notice as a chief officer, as a duty officer? ठीक है, क्रॉस डेक है, क्रॉस डेक पे लैशिंग मटेरियल है. दे आर ऑफ कोर्स लैशिंग मटेरियल ऐसे ही रहता है. दे आर गोइंग टू पुट इट बैक जैसे कंटेनर लोड होंगे और रखते जाएंगे. एनीथिंग एल्स आपको कुछ नोटिस हो रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये बीच में डाला हुआ है ना टर्न बकल वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए ना सर? या बच्चे हो तो ठीक है, क्लियर कर देंगे. नॉर्मली हम रखते नहीं है, चाहे वो साइड पे होती है, साइड पे रख लेंगे, नीचे से उठा लेगा. बट इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, ये क्रॉस डेक है, कोई रेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं दिख रहा. सर वो तो अभी ठीक है, मतलब रेलिंग नहीं है तो अभी हैच कवर बंद है ना. अगर हैच कवर खुलते हैं तो सर एक परमानेंट रेलिंग भी लगा देते हैं वो वायर की. यस. तो जो परमानेंट नहीं होती आज के टाइम में है कि यस, आजकल ये शिप्स जो है वैसे तो कि ये वो पहले था कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कि आप यहाँ स्ट्रॉन्शन डालो और बीच में मैन रोप डाल के रिग कर दीजिए. अब वो सिस्टम भी खत्म हो गया. यू हैव टू हैव द परमानेंट रेलिंग्स हियर. रेलिंग्स आर वेल्डेड परमानेंटली. ऐसे शिप होते ही नहीं है सर. या नए शिप्स में तो मैंडेटरी है ही है. क्योंकि जैसे अगर मैंने ये हैच कवर खोल दिया, अब ये बंदा खड़ा है, इसने यहाँ पे लैशिंग रॉड लगानी है. इमेजिन, अब वो यहाँ से खड़े होकर लैशिंग रॉड लगा रहा है और ये हैच कवर खुला है, बंद है, तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब ये हैच कवर उठा दिया उसने, ही इज टेकन इट अश्योर. अब एक्सीडेंट्स हुए, पीपल हैव फॉलन बिकॉज लैशिंग रॉड के साथ उसका इम्बैलेंस हुआ, सीधा हैच होल्ड के अंदर गया. ये तो जाएगा ही नहीं दे वो पहली बात तो. हाँ नहीं बच्चे, मतलब रीफर कनेक्ट करने आपकी पब्लिक. यस यस, ये आपने, दिस इज अगेन मैंडेटरी. चाहे आप ड्यूटी ऑफिसर काम कर रहे हो, चाहे चीफ ऑफिसर, कि आप शिप को देखिए. पुराने शिप्स में पॉसिबल है ये सिस्टम होगा? नो. क्योंकि मैंने खुद कराया हुआ है कि नहीं सर मेरे को रेलिंग दीजिए, हम इसको वेल्डिंग कराएंगे यहाँ पे. अब वो रेलिंग भी टूटते रहेंगे, क्योंकि जैसे उसने हैच कवर उठाना है, वो हैच कवर लगेगा, बेंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत टूटेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता. तो वाइज में हम वेल्डर है, हमारे पास क्रॉपिंग रिन्यू नॉर्मल प्रोसेस, 1 दिन 2 दिन होगा तो उसको ठीक कर देगा. तो पहले तो मैंने भी मैनुअल भी लगाए हुए कि स्ट्रॉन्शन डालते थे, फिर उसके ऊपर रोक लगाओ, 1 घंटा तक यही काम चल रहा है. उन्हें तो डिले होता था और टफ भी था वो काम. फिर कलेप्सिबल रेलिंग का सिस्टम भी आया कि हाँ जी उसको उठा के नीचे गिरा दो, फिर उसको ऊपर रख दो. आजकल जो शिप्स देखोगे तो उनमें ऑफ कोर्स आपको परमानेंट रेल्स वेल्डेड हैं, बिकॉज सेफ्टी. एनीबडी, वेदर इट कैन बी मी ऑल्सो,
अब आप इमेजिन कीजिए क्रॉस ट्रैक है, दोनों हैच कवर उठा दिए, तो क्लोजअप पिक्चर है, अगर एरिया छोटा होता है इट इज़ डेंजरस टू वॉक, इवन यू आर वॉकिंग फ्रॉम पोर्ट टू स्टारबोर्ड, ये दोनों हैच कवर खुले हैं और हैच होल्ड्स आपके खाली हैं. सम पीपल हैव द फियर ऑफ हाइट्स. आई वॉन्ट टू शेयर, मेरे सर सुपरिटेंडेंट था, उसको मनाया और नहीं मानता था, अरे नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता. उनका कोई बात नहीं, आगे एक दिन जहाज, एंड लकीली उस टाइम ऐसा हो गया कि होल्ड इंस्पेक्शन तो जाते ही हैं सब नीचे फोटो खींचने के लिए, तो जब तक ऊपर आए तो दोनों तरफ के हैच कवर उन्होंने उठा दी. अब यहाँ से बूबी हैच से निकल तो गए बाहर, अब उसने यहाँ से चल के इधर या इधर आना था. लिटरली ही सैट डाउन देयर, लिटरली सैट डाउन. फिर उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा के, वो खड़े तो हुए नहीं, बिठा के आया. तो फर्स्ट थिंग वहीं से उसने कहा कि अच्छा भाई कितने रेलिंग चाहिए, कितना मीटर आपको ये रेलिंग चाहिए, सो प्लीज़ इसको पहले कैरी आउट करो, इसकी वेल्डिंग कीजिए. यहाँ पे कई बार होता है, वी नॉट इमेजिन, जब तक हमारे साथ बीतती नहीं. तो इसके लिए वेन एवर यू ज्वाइन एज अ चीफ ऑफिसर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता ओवरनाइट है, अगर बाई चांस तो है गुड, नहीं है तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे कि हाँ भी मैंने इसको कराना है. चलो प्रेपरेशन तो ठीक है. एंट्रिंग द कार्गो, दिस इज बेसिकली योर कार्गो प्लान लुक्स लाइक दिस. एंड एंट्रिंग हार्बर, यू नो, लोडिंग प्लान, चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, वो सब हम डिस्कस करते हैं, इसमें नथिंग स्पेशल. व्हेन वी आर कमिंग, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस पे रहती है कि आफ्टर योर ऑल दिस जॉब इज डन, लोडिंग डिस्चार्जिंग, एंड एट द एंड ऑफ द जॉब यू प्लीज मस्ट टेक अ नो इंजरी सर्टिफिकेट. वैसे तो स्टीविडोर्स भी छाप के ले आएंगे, otherwise no injury certificate as a chief officer that no stevedore, nobody is injured while loading discharging. And this is, I think, most of the companies they advise you, आपने भी अगर chief officer के साथ देखा, normally they sign, keep a copy in your file because of the insurance. Sometimes these people come back after 3 months 6 months कि भाई working on the ship मेरी टांग टूट गई या कहीं फ्रैक्चर हो गया, they ask for a heavy claim. So ये चीज़ जो है एक फॉर्मेलिटी है, बट नो इंजरी सर्टिफिकेट इज इम्पॉर्टेंट टू बी ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, एवरीवन वाज सेफ. तो ये तो चलो डेंजरस कार्गो तो व्हेन वी डू IMDG तब करेंगे. अब थोड़ा सा इसमें आपका रीफर्स का आ गया, दैट आई वांट टू डिस्कस कि रिक्वायरमेंट्स फॉर रीफर्स. रीफर बाकी कंटेनर्स तो ठीक है, जनरल कार्गो कंटेनर्स नॉर्मली वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड. रीफर्स, IMDG, इन कार्गोज का तो हमें पता है, इन कंटेनर्स का पता है इसके अंदर क्या कार्गो है. रिफर्स एक्सपेंसिव कार्गो, हाई फ्रेट कार्गो, थोड़ी सी भी अगर नेग्लिजेंस हुई तो पूरा का पूरा कार्गो खराब हो सकता है. सो रेफ्रिजरेटेड कार्गोज एंड इनवेरिएबली पेरिशेबल टू ग्रेटर और लेसर डिग्री. देयर सेफ कैरेज डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग सुटेबल स्टोरेज कंडीशंस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफ कोर्स इंक्लूड्स बोथ फ्रोजन, चिल एंड उनका टेम्परेचर. So generally frozen goods do not suffer if overcooled, whereas chilled goods can be damaged by low temperatures. So जितना उनका टेम्परेचर है, सेट पॉइंट है, वो उतना हमें रखना ही है. So and the successful transportation depends again carriage instructions. अब इसकी जो carriage instructions हैं रीफर कंटेनर्स की, now जिसे हम रीफर मैनिफेस्ट कहते हैं, तो रीफर मैनिफेस्ट इज गिवन बाय द शिपर जिसका कार्गो है. तो अगर उसने मेरे को इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं दी, आधी दी हैं, इनकम्प्लीट दी हैं, व्हाट कैन आई डू, तो गया कार्गो. तो दोनों के लिए ही डैमेज क्लेम, शिप ओनर के लिए एंड शिपर के लिए उसका कार्गो गया. इसके लिए अगेन द मोमेंट द शिप बस्ट द एजेंट कम्स, ही गिव्स यू द कॉपी ऑफ द रीफर मैनिफेस्ट. रीफर मैनिफेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द शिपर. तो वो आपको देगा कि उसका क्या कार्गो है. बेसिकली उसके अंदर दिस इज द इंफॉर्मेशन, कंटेनर नंबर, कमोडिटी स्टफ्ड, टेम्परेचर टू बी मेंटेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्टोरेज लोकेशन. ऑफ कोर्स चीफ ऑफिसर विल डिसाइड विद द प्लानर एनी स्पेशल फीचर्स, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर और ट्रीटमेंट, प्री स्टफिंग, सैनिटेशन, में सारा उसके अंदर उन्होंने डिटेल में लिखा हो. वेंटिलेशन इन केस दिस कंटेनर नीड्स, स्पेशली फॉर द फ्रूट्स. रीफर कार्गो में हमने पढ़ा था, इन केस फॉर द फ्रूट्स द वेंटिलेशन रिक्वायर्ड, वो भी उसकी रिक्वायरमेंट लिख देगा. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी डेज वेंटिलेशन टू बी डन. एंड देन मैक्सिमम टाइम विदाउट रेफ्रिजरेशन, कई बार वो भी स्पेसिफाइड होता है कि यस बाई चांस आपकी पावर गई है तो कंटेनर शुड नॉट बी विदाउट पावर फॉर मोर देन 1 आवर्स 2 आवर्स.
तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने गो थ्रू करनी है एंड उसको कंप्लाई करना। अब आगे आपका कि मैंने जब रिफर्स कैरी करने हैं तब हम क्या प्रिकॉशन लेंगे। तो एज अ चीफ ऑफिसर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है कि इफ आई हैव टू कैरी दीज रिफर्स तो मैं कैसे कैसे प्रोसीड करूंगा, व्हाट ऑल थिंग्स विल कम इनटू योर माइंड प्रेपरेशन के लिए। पहले तो सर वो चेक करूंगा कि कहाँ कहाँ पे सॉकेट है, प्लान के हिसाब से उनको प्लान करूंगा सर। वेरी राइट। और फिर सर सॉकेट भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी चेक कर लूंगा। यस। और बस सर ज्यादा हाई पे लोड नहीं हो कंटेनर प्लान में, क्योंकि उसको Yes. कनेक्ट करने डिस्कनेक्ट करने प्रॉब्लम होता है। Yes. Anything else? और सर ये जो उसकी रेफ्रिजरेंट वो होती है ना गैस उसके रीफर की, वो भी स्पेयर होनी चाहिए जहाज पे, कभी Yeah. कभार वो लीक कर जाती है। Correct. What we call all, not only the gas, the reefer spares. तो सबसे Yes, पहली sir. चीज़ है कि जैसे ही आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन आती है कि भी दिस वॉइस नॉर्मली कंपनी चार्टर जो भी है दे एडवाइज यू दैट यू आर गोइंग टू कैरी 500 और 1000 रिफर्स और 300 जितना भी है दे एडवाइज इन एडवांस यू आर गोइंग टू कैरी सो मेनी रिफर्स। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपने ठीक बोला है कि इसके सबसे पहले तो मेरे पास रिफर सॉकेट की प्लान है। प्लान का मीनिंग कुछ नहीं है कि यार प्लान तो है उसमें सारे सॉकेट्स तो दिखाएं और कितने काम करते हैं कितने नहीं करते कितने डैमेज हैं। तो इसके लिए एज यूजुअल यू विल गो टू बत्ती साहब कि बत्ती साहब उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ज़रा मेरे को एक लिस्ट दे दीजिए कितने आपके सॉकेट जो काम करते हैं कितने नहीं करते। तो उनका एज यूजुअल रिप्लाई होगा सर इक्वेशन भेजी हुई है 10 चाहिए 12 नए चाहिए रिक्वेशन भेजी कुछ नहीं आ रहा। अब ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, वी कैन नॉट टेल एनीबॉडी। प्लानर के पास भी आपकी प्लान है तो ओके, चाहे हम कहते हैं हमारे पास 200 सॉकेट ही, अब वो तो सोचेगा भी 200 सॉकेट है तो 200 रिफर बुक कर दो। तो इसलिए ये एक अपडेटेड प्लान कि कितने सॉकेट काम करते हैं कितने नहीं हैं। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है यू कैन टेक अप विद द कंपनी कि भाई वी आर गोइंग टू लोड रिफर्स, हमें इतने रिफर सॉकेट्स चाहिए, हमें प्लीज़ सप्लाई कीजिए, बत्ती साहब प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कीजिए। ये नहीं कल को कंटेनर आ गया तो वहाँ पे सॉकेट काम ही नहीं करता या है ही नहीं या डैमेज, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट स्पेयर्स spare parts technical manuals for reefer container shall be maintained on board required, usually these are maintained booking line wise। तो इनका भी ऑफ कोर्स कमर्शियल पार्ट दूसरा है। पीरियोडिकल इन्वेंट्री, नाउ दिस कम्स अंडर बेसिकली चीफ इंजीनियर, बट एक हमें लेजन तो रखना ही है चीफ ऑफिसर चीफ इंजीनियर या बत्ती साहब कि साहब आपके पास इनफ स्पेयर्स हैं वी आर गोइंग टू लोड दिस। तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट दे शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज कि हमें तो पता ही नहीं था कितने रिफर आने और हमारे पास तो है नहीं। जैसे अपने रेफ्रिजरेंट का है 1 और 2 कंप्रेसर्स भी स्पेयर होते हैं एंड मेरे पास तो सिचुएशन ऐसी आई है कि कंप्रेसर जल के कंप्रेसर भी नहीं था तो एम्प्टी रिफर का कंप्रेसर निकाल के लगाया। एम्प्टी रिफर भी होते हैं साथ, सारे ही लाइव नहीं होते, मरता क्या ना करता। उसको कहा कि ठीक है, कंपनी को बता दिया कि भैया अभी कुछ है नहीं, वो रिफर ख़राब हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी है, उसका रिफर उसका कंप्रेसर निकाल के उसमें लगा रहे। ऐसी सिचुएशन भी कई बार आ जाती है। सो अगेन प्लीज़ बी इन टच, यू हैव इनफ स्पेयर, इनफ इन्वेंट्री, इनफ जो भी है, फिर हम लोडिंग शुरू करते हैं। यस, प्रिकॉशंस प्रायर लोडिंग, चेक द प्लग पॉइंट्स आर ओके, सफिशिएंट स्पेयर्स, पोजीशन ऑफ रीफर मशीनरी, प्लग पॉइंट टू बी इन्फॉर्म टू द गेंट्री ऑपरेटर। अब आपने तो लिस्ट बना के दे दी, प्लान बना के दे दी ड्यूटी ऑफिसर के हाथ में। अब प्रॉब्लम भी ये आती है कि यस कि कोई भी बे है उसको हो सकता है किसी में रीफर सॉकेट आगे हो किसी में रीफर सॉकेट पीछे हो। तो वैसे तो जो कैंट्री वाले हैं दे विल ऑल्सो आस्क, आजकल सारे एजुकेटेड हैं, सुपरवाइजर एंड ऑल, दे विल आस्क यू और दे विल सी द प्लान और दे विल सी, बट अदरवाइज एज अ ड्यूटी ऑफिसर जस्ट हैव अ लुक दैट जिस तरफ आपने उसकी मशीन रखनी है। ऑन लोडिंग प्लग इन द रीफर, चेक वर्किंग ऑफ मशीनरी, चेक टेम्परेचर रीडिंग, कंपेयर विद द सेट टेम्परेचर, एंड इसका बेस्ट है एडवाइस इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, वैसा आके देख लीजिए। बिकॉज जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, आप तो खाली यही देख सकते हैं ना कि पावर लगा दी, हाँ जी चल रही है मशीन, सेट पॉइंट ये पॉइंट ठीक है, कितना टाइम, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख सकता। तो लेट देम चेक कि हाँ भाई इफ एवरीथिंग इज़ ओके। ये नहीं है मैंने 10 रिफर 10 दूसरे कंटेनर उसके ऊपर लोड कर दिए एंड दूसरे दिन उठ के आके सुबह आपको बोले यार ये रिफर तो ख़राब है तो ले ही नहीं जा सकते।
then it becomes embarrassing. तो इसके लिए कि जो भी सिस्टम है नॉर्मली जहाँ हाई रिफर्स कैरी करते हैं वहाँ पे 32 ऑब्स भी 1 2 3 होते हैं, या रिफर इंजीनियर भी होगा, तो चाहे डे है नाइट है, टेक देम विद देम. सो दिस इज एज अ चीफ ऑफिसर यू हैव टू प्लान कि भाई मैं प्लान करूँगा ड्यूटी ऑफिसर को, ये लो भैया, उनको बता देना, चेक कर लेना. एंड नॉर्मली रिफर ट्रेड में द रिफर टेक्नीशियन इज देयर ऑन द जेटी, जो कि शिप ओनर का ही होता है. So as a duty officer, you just have to tell the supervisor कि ये रिफर में प्रॉब्लम है, जरा टेक्नीशियन को भेजिए. Let their technician and our electrical officer discuss. हमें तो एक फाइनल पॉइंट चाहिए कि कैन आई कैरी दिस रिफर और नॉट. इफ यू से नो, डिस्चार्ज. लेट देम आंसर, क्यों नहीं. चेक टेम्परेचर. ऑफ कोर्स नाउअडेज दिस टेम्परेचर चार्ट्स आर नो मोर. ओल्डन टाइम की बात है, पार्ट लो चार्ट. नाउअडेज न्यू कंटेनर्स हैव इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्डिंग व्हिच कैन नॉट बी एडजस्टेड. उसके अंदर उसने चिप लगाया हुआ है, इवन दे कैन मॉनिटर. और उसने जब सॉफ्टवेयर पे लगाना है देन ही कैन चेक इसकी पावर कहाँ, कौन से दिन, कितने घंटे बंद रही. सो दे कैन ट्रैक इजीली whether the reefer got spoiled on the ship or ashore. So please be very careful. जहाँ पे high reefers carrying capacities है वहाँ पे you have a refcon system also. एक कंप्यूटर रहता है, एक छोटी सी वायर आप इन रीफर से प्लग करते हो, आपके कंप्यूटर में सारा डेटा अलार्म्स आने शुरू हो जाते हैं. बट 2-3 शिप्स पे मैंने देखा नॉट वर्किंग है बट नॉट वर्किंग. अवॉइड लोडिंग मोर देन 2 हाई ऑन द एक्सट्रीम रोज for ease of monitoring and repairs. आजकल मैंने बता दिया रिफर्स आर being loaded at 4-5 high because you have the bridges. आप उसको देख भी सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो एंड रिपेयर भी कर सकते हो. बट एक्सट्रीम बेस पे आई विल अवॉइड, उस वहाँ पे चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकेंड ईयर, मॉनिटर करना भी डेंजरस है एंड रिपेयर करने के लिए तो नोबडी इज गोइंग टू हैंग आउटसाइड. तो अगेन पॉसिबिलिटी यू हैव टू वॉइस फ्रॉम योर साइड. हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है नहीं कर सकते फिर वी विल सी. वंस ऑन बोर्ड एंश्योर कंटेनर लैस्ड प्रॉपर्ली प्रायर सेलिंग. डिटेल लिस्ट ऑफ रीफर्स ऑन बोर्ड, देयर लोकेशन, टेम्परेचर सेटिंग इज मेड. इतने हैं. कई बार ऐसा हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन, एम्प्टी रीफर्स एंड लाइव रीफर्स दोनों, कि उसने लाइव को कनेक्ट किया नहीं, उसके साथ एम्प्टी था उसको कनेक्ट कर दिया. Now monitoring at sea, of course, daily, morning, evening. Companies also want the temperature physically checked. हाथ से लिखा हुआ ही डेटा उनके पास जाना चाहिए. नहीं तो हम कॉपी पेस्ट करते थे, आजकल वो भी नहीं हो. कहते हैं कॉपी पेस्ट करते हो बट कोई चेक करता ही नहीं. तो मॉनिटरिंग एट सी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड सम रिफर्स कंटेन स्पेशल कार्गो, VIP कार्गो, तो उसको भी आपको स्पेशल प्रिकॉशंस थोड़ी सी लेनी पड़ेगी. And during daily reefer container checks, conditions shall be checked. Power supply, cooling water, of course, ये तो है नहीं आजकल. Present actual temperature on whatever is indicating there. Data logger, any disruption of power, सब हमने देखना है. Any alarms displayed on the digital indicator. Control box, any abnormal noise. तो ये आपकी checking जो है daily, it's a hell of a job. Maintenance का तो time नहीं है ships पे. Plus you don't have enough manpower. एंड इन केस द रिफर कंटेनर मेल फंक्शन, रिपेयर भी करना है और उसकी रिपोर्ट भी भेजनी है कंपनी को भी. सो एंड सो रिफर, उसका शिपर, कंसाइनी नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, सब आपको भेजना पड़ेगा. रिपेयर वर्क ऑन मेल फंक्शन रिफर कंटेनर मस्ट बी अंडरटेकन विद बेस्ट एफर्ट्स आफ्टर कंसल्टिंग मैनुअल्स, ड्राइंग्स, एंड इट इज़ एन ऑब्लिगेशन अपॉन द कैरियर. कैरियर मीन्स हम भी साथ ही आ जाते हैं. टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन प्रिवेंटिंग any cargo damage. So this is all we have for the reefers. These are the special precautions. ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है कंटेनर्स में, क्योंकि कंटेनर्स के साथ पार्ट बी में दे देगा बट what extra precautions you will observe while carrying reefer containers. So जिन्होंने तो कैरी किया they can easily write 20 points, but otherwise also I think you can with your so much experience. So you also once you go through तो ये points लिखने मुश्किल नहीं. बट मेक श्योर ये रिफर कंटेनर्स के लिए है, नॉट फॉर द रिफर शिप्स. क्वाइट ऑफन ये क्वेश्चन मिसमैच हो जाता है. उसने पूछा है अबाउट प्रेपरेशन और प्रिकॉशंस फॉर द रिफर शिप्स, तो हम उसको रिफर कंटेनर्स में ले जाते हैं. ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है.
चलो एक और छोटा टॉपिक था एंटी हीलिंग एनीवे। एंटी हीलिंग सिस्टम जो शिप में दिया होता है, इस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज सिंपल, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट योर 2 टैंक्स। मिडशिप एरिया के जो टैंक्स होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अनदर एडिशनल पंप। मेन बैलास्ट लाइन से भी कनेक्ट होते हैं ये टैंक्स एंड एडिशनल पंप से भी कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आपको एक वो पैनल दे देता है आपके CCR में। सो एज द शिप लिस्ट, तो यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा एंड ओपन दिस। व्हेन यू पुट इट ऑन ऑटोमेटिक मोड, ये ऑटोमेटिकली वॉल्व खोलेगा। सपोज इट टेक्स अ स्टारबोर्ड लिस्ट and then the pump will start, it will start transferring water from starboard to port or port to starboard. So this is a faster system because double effect, एक तो यहाँ deballasting होगी, यहाँ पे ballasting होगी, so ship becomes upright. The idea is because if ship has got a list, then it becomes difficult to load the containers. सब चिल्लाना शुरू करेंगे, so इसलिए ये सिस्टम है। मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। आप उसको मैनुअल पे डाल के भी यू कैन ट्रांसफर द वाटर एंड, तो इसके अंदर मैंने डिटेल लिखा हुआ है सारा। आई थिंक यू कैन ईजिली रीड एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एंटी हीलिंग सिस्टम क्या है एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, जस्ट टू कीप द शिप अपराइट एंड इट्स अ वेरी क्विक वे ऑफ ब्रिंगिंग द शिप अपराइट। सो प्लीज गो थ्रू दिस एंड आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। ओह, आज आपका क्वाइट टाइम हो गया। So if you have any, I'll send you the notes. Flashing का भी भेज दूंगा. In case any doubts, any questions comes, please feel free. I am anytime available. ठीक है? सर आप शेप में हो? हाँ जी बच्चे। व्हाइट बोर्ड से पता लग रहा है सर। ओके Yeah. Okay dear. Okay.